Okay, so law of conservation of mass before reaction and mass after reaction are always equal if reaction is complete. ठीक है ना, complete reaction मतलब reactant is totally converted into product. Now sodium is 23 plus 35.5, H2O 2 plus 16. So this is total become, sorry, sodium is 23. This is 58.5. This is 18. 40 plus 36 is nothing but 76.5. And this is also total is 76.5, दोनों का सम. हो गया इधर दोनों का सम. तो sum must be equals to before and after. Sum must be equals to before and after. Before and after. Okay. This is example number 1. This is example number 1. Let us come to example number 2. देखो मैंने तुम लोग को प्रूफ करके दिखा दिया. लॉट ऑफ एक्सेप्शंस ये सब वो सब होते हैं. थियरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है जब तक उसका एप्लीकेशन पार्ट हमको नहीं आता है. Sir, please एप्लीकेशन show पार्ट इज previous इम्पोर्टेंट. हाँ, यस Sir, previous slide, previous screen. यस. हो गया. Yes, done, please. Suppose you are having H2SO4 KOH. प्रोडक्ट बनाओ और वेरीफाई करके दिखाओ मुझे प्लीज. प्रोडक्ट आना चाहिए. व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर आर फॉर्मिंग सॉल्ट. ओके. कैसे देखो, अगर नहीं आता है तो देखो रिएक्शन कैसे होता है. बाद में लिखना सभी लोग चाहो तो इधर देख लो. इधर का नेगेटिव चार्ज विल कंबाइन विथ इधर के पॉजिटिव चार्ज के साथ एंड चार्जेस अपोजिट चार्जेस में कंबाइन करते हैं. कैसे अपोजिट चार्जेस में कंबाइन करेंगे. 2 पे देखो सल्फेट पे क्या है 2 निगेटिव, तो सल्फेट का 2 इधर आएगा. अब देखो के ऊपर कितना है +1, वो इधर आएगा. तो 1 मैं लिखता नहीं हूं. 1 अगर तुम नहीं लिखते हो तो वो ऐसा रहेगा K2SO4 प्लस इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव.
H is 1 positive, OH is 1 negative, 1 plus 1 minus, बिल्कुल equal. Balance it and verify it. Atomic mass hydrogen 1, sulfur 32, oxygen is 16, potassium is 39. 39, please, fast. अनुष्का कुलकर्णी. कोई प्रॉब्लम? हो गया सब लोगों का? प्लीज, हो गया तो मैं मैच कराता हूँ. यस, सब लोगों का हुआ है. तो चलो मैं उसको वेरीफाई करके देता हूँ. ओके, पहले तो यू मस्ट बैलेंस द रिएक्शन. Number of atoms before reaction and after reaction, they are always conserved. Okay, before reaction and after reaction number of atoms are always conserved. So right side 2 potassium must be 2 potassium. SO4 left side 1, right side SO4 1. Now you are having 2 OH. Hydrogen and oxygen must be balanced one. So now you are having 2 plus 36 क्योंकि हाइड्रोजन का 1. ऐसा पोटेशियम 39 प्लस 16 प्लस 1 17 डायरेक्टली लिख दिया. ओके, तो दिस इज 56. 56 प्लस 2 इज 1112 directly written. Okay, so this become 210. Now potassium 39 multiplied by 2, सल्फेट का इज 96. हाइड्रोजन का देखो H2SO4 का इज 98. हाँ बोलो निधिता, क्या डाउट है? Sir, why it is 2 plus 36 in the first, like in the left side while while adding it? हाँ, टोटल मास मस्ट बी एडेड ना. हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 1, सल्फर इज 36, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, सबको ऐड कर दिया, बिकम मास ऑफ H2SO4. Sir, but you've written sulfur is 32, like in the left side. हाँ, ऑक्सीजन का 36 लिखा है ना, सल्फर का. Sulfur का 32 लिखा है. ओके, 1 मिनट. सल्फर का 32 ही होता है. इधर 64 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए था. यस, दिस इज 32. 16 multiplied by 4 is 64. H2SO4 का मोलर मास डायरेक्टली 98. राइट है क्या अभी?
Yes, sir. 78, 96, 36. देखो सबका सम आ रहा है क्या? आना ही आना चाहिए. हाँ, Shravani is saying I am very much confused regarding balancing of the reaction. अब balancing of the reaction is problem is that कि this is heat and trial method. तुमको बस दिमाग लगा के इधर उधर करना रहेगा 2 3 T 4 3 4 5 6 ऐसा करते हुए. ठीक है ना? Okay, sir. थोड़ा सा प्रैक्टिस, फिर भी मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में. So Okay. this is also 210. This must be same. This must be same. Suppose you are strongly heating CaCO3. डेल्टा को हम लोग हीट लिखते हैं. डेल्टा, डेल्टा का मीनिंग हीट होगा. ठीक है. इसको भी वेरीफाई करो प्लीज. कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन is 16. Verify it fast. Already balanced. Yes. दर्शन के आगे 100 equals to 100. Done. So this is 40 plus 12 plus 3 multiplied by 16, which is 100. Calcium 40 plus 16, 56. Carbon 12, 2 multiplied by 16 is 44. Total will be equals to 100. बिल्कुल सही है भाई. तो law of conservation of mass is correct. So does it always hold? बोलो, सब लोग बोलो भाई. Is it always correct? This is always correct. This is always correct, or sometimes it is not correct. बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. Law of conservation of mass always holds? No, sir. No, sir. Yes. Darshan is saying no, E equals to mc square. Very good. So this is especially not valid when nuclear reactions are taking place. Especially nuclear reactions. Simple chemical reactions are taking place is correct. But whenever nuclear reactions are taking place, na,
then its some mass of its some mass of it is converted into energy, न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, आइंस्टाइन ने कैलकुलेट करके दिया, जो मेरा मास बिफोर रिएक्शन, मास आफ्टर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन ज्यादा आएगा एंड मास आफ्टर रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड दैट मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, that mass is called as mass defect, and that is equals to mass defect, क्या है दूसरा, mass defect equals multiplied by c का square is called as energy. तो न्यू डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड क्या करके बोलते हैं लोग, मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व, मास एंड एनर्जी is always conserved during the reaction, mass and energy is conserved, mass and energy is always conserved during the reaction. ये मेरा बेटर स्टेटमेंट है एज कंपेयर टू मास, या तुम्हारे पास सिर्फ मास कंजर्वेशन के रेस्पेक्ट में. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए. नो प्रॉब्लम. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. Trisha, is there any problem? Let us move to next one. ठीक है ना? तो मुझे एक्चुअली इन द बिगिनिंग ही क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए था प्लीज. अगर तुम लोग के पास जगह हो तो मैं ऐसा कर सकता था, बट जरूरी नहीं है. चलो, 10th क्लास में हम लोग 9th क्लास 10th क्लास तक सब लोग जानते हैं. नाउ प्लीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हम लोग चलते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देयर इज, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है ना? तो तुम चाहो तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए स्पेशली लिख सकते हो. स्टेटमेंट लिखना है क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस का मास वाला? Yes, sir. लिख लो प्लीज, लिख लो प्लीज, उसी लाइन के नीचे जो भी हम लोगों ने एग्जांपल किया है. लिखो द एक्सेप्शंस ऑफ, the exceptions of, the exceptions of, the exceptions of law of conservation of mass is nuclear reaction, is nuclear reaction, is nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें लिख लो. लिखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन mass of reactant and energy difference between
energy difference between mass of reactant and mass of product. Mass of product energy difference between mass of reactant and mass of product is called as mass defect. ठीक है ना? And energy and energy नहीं, and mass is converted into, sorry, mass defect लिखा क्या? It is called as mass defect, please. Yes, Yes. sir. हाँ, it is called as mass defect, and that mass defect is converted into, and that mass defect is converted into, and that mass defect is converted into, that mass defect is converted into into energy, into energy, and according to, and according to, and according to Einstein, and according to Einstein, and according to Einstein, that energy is, that energy is ऐसा होता है E इक्वल्स टू MC square. mc स्क्वायर या डेल्टा mc स्क्वायर. तुम लोग डायरेक्ट m लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा डिटेल्ड में, बट इन 12th क्लास, नॉट इन 11th क्लास. हाँ बोलो, अभिदा हाथ उठाया है भाई, सभी लोग Sir, हाँ बोलो. न्यूक्लियर रिएक्शंस इज एक्सेप्शन, राइट? सो Yes. उसमें जो मास होता है वो मतलब डिफरेंस ऑफ मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. यस. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, सो उसमें क्या होता वो है? हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है, दैट इज द डिफरेंट इशू. ठीक है ना? वो अभी हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. हाँ, तो रेवा उसमें बोल रहे हैं सर, व्हाट इज आफ्टर आइंस्टाइन? आइंस्टाइन एनर्जी, या अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर. सर, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हाँ मैं मास बताता डिफरेंस नहीं हूँ होता. एक एक करके. मैं अकेला हूँ, ओके. मैं अकेला हूँ, तुम लोग पूछने वाले बहुत लोग हो. सी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट. अगर ऐसा है तो सब बताता हूँ, सब वन बाई वन. मेरे इतना प्रॉब्लम कोई भी विदाउट इरिटेट, मेरे जैसा प्रॉब्लम कोई नहीं क्लियर करेगा. तुझे पता है इधर पे एक दो टीचर हैं, कैन यू बिलीव, मैंने तुम लोगों को ओपी टंडन बोला है, ओपी टंडन मैंने तुम लोगों को बोला है कि रेफर करो. दूसरी कोचिंग में ओपी टंडन जब लेकर के जाते हैं टीचर के पास, पता है टीचर क्या बोलते हैं? कैन यू बिलीव? टीचर्स बोलते हैं ओपी टंडन को ही फोन लगाओ, उसी से पूछो. तो हायर लेवल के डाउट तो टीचर वैसे ही देख करके भागते हैं. तो कोथरूड बेल्ट तो वैसे ही गायब है, कोथरूड बेल्ट पूरा गायब है. आईआईटी लेवल तो बिल्कुल जीरो लेवल, नीट भी पूरा जीरो लेवल. सब लोग झूठ मूठ का आईआईटी एडवांस और ये सब लिख करके बैठे हुए हैं. पूरा कोथरूड बेल्ट वैसे ही है. चलो भाई, हाँ इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ना, दैट इज द डिफरेंट इशू.
वो क्या होता है, डेट इज द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन सब का डिफरेंस लेते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो पॉजिटिव नेगेटिव आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सपोज ऐसा है, देयर आर केमिकल सब्सटेंस ए बी सी डी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेता हूं, अगर पॉजिटिव आया तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव आया तो एक्सोथर्मिक। ठीक, वो बाद में देखेंगे हम लोग, अभी नहीं, बट दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम, totally different concept from mass defect. Okay, that is totally different concept. Abhida, now second one please. हाँ, किसी का और भी डाउट है क्या? Yes, got it. Now second one please, law of a constant proportion. ये भी सीबीएसई, आईसीएसई और आई थिंक महाराष्ट्र बोर्ड में भी सब लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, law of constant proportion. What is word is using constant and proportion. Constant word is using constant, कहने का मतलब है उनका proportion will be, यानी ratio will be always constant. Constant. कैसे? Suppose you are taking H2O, भाई एक दो लेक्चर के इसके बाद हम लोग का रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी हम लोग का बिल्कुल थियोरेटिकल टाइप का होगा, तो सभी लोग आराम से बैठे रहेंगे। So this is mass of hydrogen and mass of oxygen. Mass of hydrogen and mass of oxygen. Mass of oxygen कितना है? 16. हाइड्रोजन का 1 होता है। तो भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि up to atomic number 30 atomic mass must be remembered one, must be remembered one. Okay, तुम्हें बुक में ऐसा दिया होगा वेट या मास, देखो स्पेशली इन केमिस्ट्री वेट एंड मास इज डिफरेंट, वेट एंड मास इज सेम केमिस्ट्री में, बट इन फिजिक्स इट इज नॉट सेम। मैं तुमको भी प्रूव करके बताता हूं। ऐसा, यही तुम ऐसा लिखता है ना? मैं देखो कितने आराम से जाते 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 हम लोग हायर लेवल तक जाते हैं धीरे धीरे। दिस इज टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट इज टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यस, एटॉमिक मासेस मस्ट बी रिमेंबर्ड वन। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज। तो वॉट एवर इज द सोर्स, अब तू वाटर प्योर वाटर ले, ऐसा नहीं है कंटेमिनेटेड वाटर ले लिया। वाटर तू अब चाहे यूएसए से लेकर के आ, और चाहे वाटर तू वाराणसी से लेकर के आ, और चाहे वाटर पुणे से लेकर के आ, सभी में इफ वाटर इज प्योर, तो इन दैट mass ratio of hydrogen and oxygen must be same whatever is the source. अब पुणे वाले ने पता चला कि ट्यूबवेल से लेकर के आया, यूएसए वाले ने सपोज किसी रिवर से लेकर के आया, वाराणसी वाले ने किसी वेल से लेकर के आया, कुएं से लेकर के आ गया। तब तू चाहे पॉन्ड से ले, चाहे ट्यूबवेल से ले, चाहे कहीं से भी ले, मास रेशियो मस्ट बी इक्वल। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो फास्ट प्लीज, राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज।
Write down definition, please. Write down definition, please. लिखो लिखो mass ratio of two elements. Mass ratio of two elements, yeah, simply elements. Mass ratio of two elements in any molecule, in any molecule or compound, in any molecule or compound is always is always is always constant, is always constant, is always constant, whatever is the whatever is the source, whatever is the source of compound, whatever is the source of compound, whatever is the source of compound, whatever is the source of compound. एग्जाम्पल लिख लो. Sir, can you please repeat again? रिपीट करने के लिए mass ratio of two elements in any molecule or compound is always a constant, is always constant, whatever is the source of molecule or compound. यही बोला था मैंने, whatever is the source of molecule or compound. Whatever is the source of molecule or compound. Suppose you are taking CO2. हाँ बोलो. Yes. Suppose you are taking CO2. This CO2 is coming from your silencer of bike. This CO2 is coming from any chimney of the industry. Whatever is the source, I mean, whatever is the source. Yes, only distilled water, bhai, pure water. Pure water, I told you pure water, pure water. Pure water. Otherwise pure water नहीं लेंगे तब तो डिफरेंट आएगा ही आएगा. ओके चलो, तो CO2 में mass of C and mass of oxygen. Oxygen कितना आ गया? 2 multiplied by 16. तो बोलो कितना आ गया? रेशियो इज फास्ट बोलो भाई, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स. 12/32. 12/32. फाइनल कट करके तो देखो. 3 Very good. point. सही saying 3/8. Yes, more than two elements. There are so many compounds, रे बाबा. ये ले, है ना? तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ये ले, जरूरी नहीं है 3, 2, 3 भी हो सकते थे. ये लो. टू इंटू 1 is to 32 is to, बोलो क्या आया?
टू कॉमन है, हटा दिया है ना। देखो मैंने कहीं W लिख रहा हूं, कहीं M पे लिख रहा हूं। वेट एंड मास, वेट एंड मास। केमिस्ट्री के लिए आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री के लिए वेट एंड मास इज सेम। केमिस्ट्री के लिए वेट एंड मास इज सेम। नाउ आई एम टेलिंग यू कि व्हाई। पहले तुम लोग ये बताओ, वेट एंड मास इज सेम और डिफरेंट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग। वेट एंड मास इज सेम और डिफरेंट? Different. डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज डिफरेंट, यस। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या लिख के चलते थे अगर याद हो तो, वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी वाला मास इनटू जी होता था। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था, है ना। और ये जी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, जी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, बट मास का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तू भाग करके चला जाए अर्थ के सेंटर पर, तू भाग करके चला जा अर्थ के सेंटर पर, योर वेट बिकम, जल्दी बोलो, तुम गलती से पहुंच करके क्या किया तूने? तू सुरंग बना रहा था, केव बना रहा था, बोगदा, और वो बनाते बनाते कहां पे पहुंच गया? अर्थ के सेंटर पर। अर्थ के सेंटर पर योर वेट विल बी जीरो, है ना। वेरी गुड। तो इट इज डिफरेंट वन। हाँ भाई, तो मोर देन 2 3 4 5 कितने भी हो सकते थे। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन। हाँ बोलो, कोई और भी बोलना चाह रहा है? यस, लास्ट स्लाइड, व्हाई नॉट। So whatever is the source, but weight ratio will be always constant. Weight ratio will be always a constant. हो गया क्या? Suppose who will give the ratio of this one? मैंने मोहर सॉल्ट का नाम सुना है क्या? मोहर सॉल्ट का अगर नाम नहीं सुना है, पोटास एलम का नाम सुना है क्या? अच्छा नहीं सुना है, कोई बात नहीं। पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम का तो नाम सुना होगा, सीबीएसई एसएससी वाले डेफिनेटली सुने होंगे। यस, पोटास एलम, यस। चलो देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला? ये होमवर्क है। दिस इज होमवर्क, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, K2SO4 dot Al2SO4 dot 24H2O। कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। और हम लोगों ने देखा है ना पोटास एलम, तुम लोगों ने देखा होगा घर पे सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद कुछ तो फेस पे रब करते हैं, क्रीम नहीं, सॉलिड पार्ट वाइट, है ना, फिटकिरी बोलते हैं, दैट इज एलम, दैट इज कॉल्ड एज एलम। ठीक है ना। ये सभी लोग रेशियो किसका किसका लिख करके लाएंगे? हाइड्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो। अरे एल्यूमिनियम भी है, Al2SO4 का थ्राइस, सॉरी। ठीक है ना।
और फिर तुम लोगों ने वाटर को प्यूरिफाई करने का मेथड कभी हो सकता है नाम सुना होगा। तो वाटर अगर Turti, sir. हार्ड वाटर रहता है तो उसमें फिटकरी एलम डाल देंगे तो वो भी क्या कर देता है, प्योर कर देता है ना। दैट इज नथिंग बट दिस वन। अभी मैं बताऊंगा सब और भी ज्यादा में। हाँ भाई, दिस इज पोटास एलम, लिख लो, बाद में मैं अभी यूज करूंगा कभी। फिर तुम्हारा नाम मोहर सोल्ट, ये सब दिस नॉट अ पार्ट ऑफ इसका, मैं ऐसे ही लेकर के तुमको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। या ऐसा तो नहीं कि हम लोग को डर लगने लग गया। प्लीज भाई प्लीज, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 Zn तक, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करके रखो किसका है किसका नहीं है। I told you so many times and again I am telling you कि नीट और IIT CET तुमको कभी कभी एटॉमिक मास ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। अब सोच लो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ लेट अस मूव टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे जाता हूं और हमेशा यही चलता रहेगा इन डिटेल्ड वर्जन। सब लोगों ने मुझसे पीछे स्टार्ट किया और मुझसे आगे निकल गए चैप्टर वाइज। सोचो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल। नाउ वर्ड इज सेइंग मल्टीपल, word is saying multiple and proportion. So if you are taking two elements A and B, इसको कंबाइन करने पर सपोज ये ऐसा बना ले, बना सकता है ना फॉर्मूला। तो इनके कहने का मतलब था nobody will write anything, I will dictate each and everything. Ratio of A and ratio of B is जो भी यहाँ पे आया, same thing is here. So in what mass ratio of A is combining with B? In what ratio of A is combining with B? ठीक है ना। सपोज यहाँ पे आ गया 1:1, यहाँ पे आ गया 1:2, यहाँ पर सपोज 2:1, ऐसे ही रैंडम। रैंडम आई एम टेकिंग। हो सकता है वॉट एवर आई एम रिटन इज वॉट एवर आई एम राइटिंग इट इज रॉन्ग रेशियो, बट मैं मेथड बता रहा हूँ। इसका 1 पार्ट इसके 2 पार्ट से कंबाइन करा है, देख लो। 1 1 ऊपर 1 ऊपर 1, यानी इधर 1 है इधर 2 है, तो हो गया ना। इसका 1 पार्ट इज कंबाइनिंग विथ 2 पार्ट। तो ये तुम कैसे लिख सकते थे, 1/1 इज टू 1/2 का रेशियो लेकर के। कुल मिलाकर के अभी तुमको कम समझ में आया होगा, बट मैं अभी एग्जाम्पल में जाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। थ्योरेटिकल ऐसे समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू theory is different and numerical is totally different. First please write down definition. Word is saying multiple, पहला अभी कोई नोट नहीं करेगा। whenever two elements are combining together can form more than one product, more than one it can form more than one product and their mass ratio are in the simple ratio, their mass ratio are in simple ratio। कैसे? Please write down definition, write down definition please।
लिखो when two elements are combining together, when two elements are combining together, then they are forming then they are forming then they are forming more than one compound more than one compound more than one compound and then mass of a mass of first element, then mass of first element, then mass of first element, then mass of first element which is combined with second element, combined with second element in second element combined with second element, second element, second element second element is having simple ratio, is having simple ratio, is having simple ratio of their mass. ठीक, बोलो प्लीज। अब देखो एग्जांपल में ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एलिमेंट ए दैट इज फर्स्ट and element B that is second. Now it can form H2O now weight ratio of, प्लीज अब सब लोग देखो, बाद में लिखो, बाद में लिखो, weight of hydrogen, weight of oxygen किसके लिए? for H2O it is 1/8, पहले कैलकुलेट किया है ना। for H2O2 so 2 by कितना आएगा इसका 32 यानी 1/16, this is 1/16। now प्लीज सब लोग देखो ध्यान से, कोई लिख रहा था तो बंद करो। देखो 1 and 1 यानी हाइड्रोजन का 1 पार्ट तो ऑक्सीजन का 8 पार्ट, यहां पर हाइड्रोजन का 1 पार्ट तो इसका 16 पार्ट। नाउ इन व्हाट रेशियो हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन वाटर एंड इन H2O2? कोई कुछ नोट ना करेगा, मैं फिर से पूरा बता रहा हूं। रेशियो इन विच hydrogen is combining with
hydrogen in which ratio in which hydrogen is combining with oxygen. ओके, तो प्लीज सब लोग देखते रहो. दिस इज 1/8, 1/16. तो इन दोनों का क्या करो, रेशियो ले लो तुम बस, किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं. अब नोट करो इधर से. फॉर एग्जाम्पल लिखो हाइड्रोजन एंड तो उनके कहने का मतलब था रेशियो विल बी सिंपल. So whenever two elements are combining together, they are forming more than one product, and they first element is combining with second element in the simple ratio. Yes. हर्ष है क्या, हर्ष? हाँ बोलो. प्रणव बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है. प्लीज फिर से क्या करो, रिज्वाइन कर. ठीक है ना? चलो चलो. Similarly, carbon and oxygen is combining with each other, is forming CO and CO2. जल्दी से बोलो. वेरीफाई करो फास्ट.
यस, इसका आ गया 3/4। CO2 का बोलो। दोनों का रेशियो लेकर के देखो। टू इज टू वन, 2:1। It must be simple ratio, huh? It must be simple ratio. Yes, very good. Very good. सब लोगों का आया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, घर से वेरीफाई करेंगे। That is SO2 and SO3, SO2 and SO3। तो SO2 SO3 में, SO2 SO3 में बोलो, या फिर घर से करके आओ, नॉट एन इशू। ठीक, चलो उसके बाद लॉ ऑफ law of combination of gas volume। ठीक है ना, या तो फिर इसी को हम लोग बोला करते हैं गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो, डाउट है निधिता को, बोल निधिता। निधिता बोलो। Sir, what if we take the weight of oxygen is to weight of carbon in the earlier example? किसी का भी ले सकते हैं, बट डिफाइन करना है। So, but the result will be same or it will be different. डिफरेंट आएगा ना, तब उल्टा आएगा तब। But is it allowed? I mean, is it right if we use like that? See, that's what I say ना, कि you have to write. Suppose you are taking WC by WO, so what does it mean? Ratio of mass of carbon and oxygen. That is, carbon is combining with oxygen. If you are taking WO by WC, mass of oxygen combining with carbon, ऐसा। Okay, sir, got it. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Thank you. तो ratio will be reverse. Ratio will be reverse. So this is especially for gaseous volume reaction. है ना, देखो what is saying, gaseous volume. Suppose this is forming 2HCl.
What is the coefficient, please? What is the coefficient, please? कोएफिशिएंट किसको कहेंगे? हाँ, चलो मैं बताता हूँ। रिएक्टेंट के जो आगे लिखा होगा ना, या प्रोडक्ट के आगे, तो केमिकल सब्सटेंस के जो आगे लिखा है इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। कुछ नहीं लिखा है तो कितना है? 1 है। ठीक, तो जो भी इसका कोएफिशिएंट है, इसका कितना हो गया? 1 यूनिट। इसका कितना? अगेन 1 यूनिट। इसका कितना? 2 यूनिट कंबाइन। तो जिस यूनिट में ये लोग कंबाइन कर रहे हैं ना, वही ये वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि मैं इसी को क्या बोलता हूं? मोल रेशियो बोला करेंगे। मैं इसी को मोल रेशियो बोलता हूं, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल एंड 2 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म। बट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? 1 यूनिट ऑफ, यानी 1 वॉल्यूम यूनिट। 1 वॉल्यूम यूनिट किसका? अब यूनिट कुछ भी हो सकता था। सपोज तूने बोल दिया कि दिस इज 1 लीटर, 1 लीटर, सब तो दिस विल बी 2 लीटर। Suppose this is 1 ml, so this will be 1 ml, this will be 2 ml, like this one. समझ में आ रहा है? Whatever unit you are taking, whatever is the unit you are taking, सेम रहेगा सभी जगह। सपोज मैं बोल दूं कि इसका 1 गैलन, उसका 1 गैलन, तो इसका विल बी 2 गैलन, like this one. Okay, so whatever is the ratio of moles in which gases are combining, in the same ratio of their volume will combine with each other. This is the proper statement. So please write down statement, please. Please write down statement, please. लिखो whenever whenever two or more than two gases are combining together, whenever two or more than two gases are combining together, whenever two or more than two gases are combining together, whenever two or more than two gases are combining together, their volume ratio will be, their volume ratio will be, their volume ratio will be, their volume ratio will be same as, their volume ratio will be same as volume of, same as volume of gas. Mole ratio is same as, sorry, mole ratio is same as volume ratio of the gas. Mole ratio is same as volume ratio of the gas. Volume ratio is same as volume ratio is same as mole ratio of the gas. Yeah, mole ratio is same as the volume ratio of the gas. Tick. Any problem till now, please? Any problem till now, please? No problem. तो अभी भी हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का दिस इज बेसिक पार्ट, मोल कॉन्सेप्ट का दिस इज बेसिक पार्ट, मोल कॉन्सेप्ट का दिस इज बेसिक पार्ट. ओके, मोल calculation of moles is still, calculation of moles
हम लोग बोल रहे हैं स्टिल रिमेनिंग वन, वो अभी बाद में आएगा। चलो भाई, हाँ सभी लोग भाई जो भी 300 एंड फी वगैरह पे कर रहे हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट करो, अदरवाइज डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ना, रजिस्टर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा। सो प्लीज जो भी सेंड कर रहे हैं वो लोग भेजते जाएं, जो भी फी सेंड कर रहे हैं वो लोग मुझे भी भेजते जाओ इसका स्क्रीनशॉट। वी सेइंग बैंक डिटेल रेवा, ठीक है रेवा, बैंक डिटेल होना चाहिए, 2000 जिसमें किया है उसी में करना है, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे ऑलरेडी आई हैव प्लेस्ड द टेस्ट, टेस्ट से पहले प्लीज हो ही जाना चाहिए। हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी बहुत लोगों ने पे नहीं किया ना आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इट विल टेक 5 मिनट ओनली, इट विल टेक ओनली 5 मिनट, ओके। चलो थैंक यू सो मच। यस, गूगल पे इज अलाउड। Thank you so much, Didi. Thank you so much, Didi. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you.